हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो उम्मीद है कि आपको जो मैंने क्वेश्चंस पहले बताए हैं वो आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये एक बार और आप सभी का स्वागत है इस चैनल पर। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो से। सो क्वेश्चन है कि arthritis is caused by deposition of which of the following in joint of the body। सो एल्बुमिन जो है इसके डिपोजिशन से क्या होता है, आर्थरिस्ट पैदा होता है। सो arthritis is caused by depositions of uric acid crystal in joint and fluid with the body, and gout is a painful form of arthritis. Next question है कि high level of uric acid in the blood is characteristic of which disease। अगर हाई लेवल ऑफ यूरिक एसिड और ब्लड के अंदर तो ऐसी कौन सी बीमारी का एक लक्षण है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, गोट। So gout is a disease caused by high level of uric acid in the blood, and it causes an attack of sudden burning pains, stiffness and swelling in the joint। Next question है कि the people who eat cooked food with the adulterated mustard oil can cause dangerous disease। Which of the following reason may not be the correct? So C is the right answer, adulterations of rice husk in oil। So राइस हस्क इन ऑयल के अंदर एडल्ट्रेशंस करते हैं तो क्या होता है, डेंजरस डिजीज को क्रिएट कर सकता है। Dropsy disease characterized by the swelling of body tissue due to the accumulation of fluid। When the mustard oil is adulterated deliberately or accidentally with the argemone oil and protelinear occur in mustard adulterations like a mixture of cyanide parts and mixing white color substance usually happen। So the alteration of rice husk in oil not the correct reasons। It began a single cell grow in merciless disease that claim of million of lives every years after, but scientists are still unlocking its mysteries and fight against it. We now have reached a dramatic turning point. New discovery promise better therapies and hope in the war against it। So the disease referred to in the above quotations is A, answer is A है। तो कैंसर जो इसका राइट आंसर होगा। सो कैंसर जो है एक ऐसा डिजीज है इन्वॉल्विंग एबनॉर्मल सेल ग्रोथ विद द पोटेंशियल टू इन्वेड स्प्रेड टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। धीरे धीरे जो अलग पार्ट्स ऑफ बॉडी में फैल जाता है। नॉट ऑल टर्मर्स आर कैंसरियस, बिगिनिंग टर्मर डू नॉट स्प्रेड टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। पॉसिबल साइन जो सिम्टम्स हैं, न्यू हार्म लंप हो जाता है, एबनॉर्मल ब्लीडिंग एंड प्रोलॉन्ग कफ एंड अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस, चांस चेंज इन द बाउल मूवमेंट etc। तो ये सब जो है सिम्टम्स है। While these symptoms may indicate cancer, they may also occur due to the other reasons। इसके अलावा भी reasons हो सकते हैं। There are over 100 different types of non-cancer that affect the human। तो लगभग 100 types of different types कैंसर होते हैं जो अफेक्ट करते हैं ह्यूमन को। Anthophobia is a fear of which of the following? तो C is the right answer, flower। So anthophobia is an abnormal persistent fear of flower। The term comes from Greek roots anthos mean flower and phobos means fear। The disease hysteria generally occur in which group? Hysteria किस ग्रुप में होता है? So option C is the right answer, young woman के अंदर जो है ये होता है। आखिर ये होता है क्या है? हिस्टीरिया जो है एक डिजीज है जो कि यंग और अनमेरिड वुमेन में होता है। इट इज़ अ जेनाइटल डिसीज इन विच सिम्टम ऑफ एनजाइटी होता है, डिस्कम्फर्ट एंड फेंटनेस और फॉन्ट। सिलिसियस इज अ क्या है? एक लंग डिसीज है। क्या है? लंग डिसीज। सो सिलिसियस इज अ लंग डिसीज दैट इज caused by inhaling tiny bits of silica, and silica is a common mineral which part of sand, rock, mineral like ores like quartz। Manufacturing of thyroid gland is due to the deficiency of C। सो थायराइड ग्लैंड जो है जो मैन्युफैक्चर होता है वो डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन की कमी से होता है। और मैन्युफैक्चरिंग मल मेल सॉरी मेल फंक्शनिंग। So malfunctioning of thyroid gland is due to the deficiency of iodine, and goiter is abnormal enlargement of thyroid gland। Most common cause जो है which is lack of iodine in the diet। रीजन ये हो सकता है कि आप जो डाइट ले रहे हो उसमें कम जो है आयोडीन की कमी है। Deficiency of iodine lead to the decreased productions of thyroxine।
and triiodothyronine hormones from the thyroid glands, which are necessary to regulate metabolic rate and other vital body functions. नेक्स्ट जो है, मैच ऑफ द फॉलोइंग, सेलेक्ट करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। तो सिलेक्ट आंसर को मैच करना है। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, जो है ए का 2 होगा। आयरन की डेफिशिएंसी से एनीमिया होता है, एंड बी का जो है 3 होगा, यानी आयोडीन की डेफिशिएंसी से गोइटर होता है, और विटामिन ए की कमी से क्या होता है, नाइट ब्लाइंडनेस, बेरी बेरी जो है होता है विटामिन बी डेफिशिएंसी से। डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन कोज गोइटर्स, ठीक है। शॉर्टेज ऑफ विच एलिमेंट कोज गोइटर डिसीज, तो आयोडीन इज द राइट आंसर। Iodine is administered to patients suffering from goiters. यूज ऑफ द पॉलिश्ड राइस इन ह्यूमन डाइट कोज फॉलोइंग डाइट डिजीज। पॉलिश राइस का अगर यूज़ करते हैं तो फॉलोइंग डिजीज जो है होती है, बेरी बेरी जो है डिसीज होता है। यूज ऑफ द पॉलिश राइस इन ह्यूमन डाइट कोज फॉलोइंग डिसीज, तो मैंने बताया आपको बेरी बेरी होता है। In countries where polish rice is main cereal in the diet, people suffer from be very. A man who does not know when to stop eating, it is suffering from. इसके इंसान को पता नहीं कब रुकना है, मतलब खाने को कब रोकेगा, स्टॉप करेगा तो ईटिंग को। तो सफरिंग फ्रॉम इसका मतलब जो है बुलीमिया से वो सफ़र कर रहा है। अभी क्वेश्चन ये आता है कि बुलीमिया होता है क्या है। सो बुलीमिया इज अ नर्वस कॉमनली कॉल्ड है। बुलीमिया इज अ सीरियस ईटिंग डिसऑर्डर। पीपल विद बुलीमिया में secretly being eating large amount of food and then purge, trying to get rid of extra calories in the unhealthy way. They attempt to use purging to manage their weight or prevent additional weight gain, and men who suffer from this उसको बोलते हैं जो खाने को नहीं रोकता। So blue baby pollutions, this is due to the excessive presence of each of the following drinking water. So नाइट्रेट अगर ज़्यादा होगा तो ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्सेस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इन द ब्लड कोज द ब्लू बेबी सिंड्रोम डिसीज। तो नाइट्रेट इज द राइट आंसर। मेथाग्लोबिन जो है इसका दे रखा है, ठीक है। ब्लू बेबी सिंड्रोम इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इन द ब्लड। सो मेथाग्लोबिन जो है अगर ब्लड में प्रेजेंस होता है तो ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। What is the correct sequence of following in heart attack? तो करेक्ट सीक्वेंस क्या होता है हार्ट अटैक में? बी जो है इसका राइट आंसर होगा। सो पहला होगा आपका 2, ठीक है, उसके बाद है 4, और उसके बाद जो है आपका एंड देन उसके बाद जो है ये होता है। तो पहला होता है प्लेग फ्रॉम फाइबर टिश्यूज एंड हाई कोलेस्ट्रॉल, क्लॉट ऑफ ब्लड कैरीड इनटू द कोरोनरी आर्टरीज, ठीक है। उसके बाद नैरोइंग द इनर ऑरिफिस ऑफ द वेजल्स एंड इनएडिक्वेट सप्लाई ऑफ ब्लड वेज ऑक्सीजन। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। इन द मेडिकल टर्मिनोलॉजी गोल्डन आवर इज रिलेटेड विच। सी जो है हार्ट अटैक से रिलेटेड है गोल्डन आवर जो है। सो गोल्डन आवर इज क्रिटिकल 1 आवर फ्रॉम द onset ऑफ हार्ट अटैक। अगर 1 घंटे के अंदर में आप उसको सही टाइम पे इलाज दे दो तो शायद बच सकता है। सो मोस्ट ऑफ द डेथ ऑकर ड्यूरिंग दिस पीरियड इफ नॉट ट्रीटेड प्रॉपरली। सो ये गोल्डन आवर माना जाता है 1 घंटे को जब उसको हार्ट अटैक आता है। तो बीटा ब्लॉकर इज इन मेडिसिन टू सेव फ्रॉम हार्ट अटैक। तो बीटा ब्लॉकर एक मेडिसिन है जो कि क्या करता है, हार्ट अटैक से सेव करता है। Beta blocker is also known as the beta adrenoceptor blocking agent, drug that are prescribed to treat several different types of conditions including hypertension, high blood pressure, angina, and some abnormal heart rhythm and heart attack. Which of the following is essential to regulate the heartbeat? Heartbeat को regulate करने के लिए सबसे essential चीज़ क्या है? पोटेशियम है। सो पोटेशियम को के से डिनोट करते हैं, प्ले रोल इन एवरी हार्ट बीट एंड इट हेल्प ट्रिगर द हार्ट टू स्क्वीज ब्लड थ्रू द बॉडी। इट ऑल्सो हेल्प योर मस्कल्स टू मूव, नर्व्स टू वॉक एंड किडनी टू फिल्टर ब्लड। फास्फोरस इज गुड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ बोन्स। फास्फोरस किसके यूज होता है? फास्फोरस जो है डेवलपमेंट ऑफ बोन्स के लिए, वेयर द आयरन डेफिशिएंसी लीड टू अनीमिया। विच ऑफ द फॉलोइंग दिस इज रिलेटेड टू द डेफिशिएंसी ऑफ पोटेशियम। पोटेशियम की डेफिशिएंसी क्या होता है? लो ब्लड प्रेशर होता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर।
So lack of potassium in the body cause low blood pressure. It is a mineral whose major source are fish, milk, and cereals and fruits and vegetables. इसके sources हैं सभी. If albumin is releasing with the urine, then failure of each organ में होगा, तो भी किडनी जो है फेलियर हो सकता है. So urine there are about 95% water होता है, 2% unuseful salt in ions and 2.6% urea and 0.3% creating in a very small amount of uric acid and some other useless matter. So the presence of albumin in its increase the chance of kidney failure. और ज़्यादा ये होगा एल्बुमिन तो क्या होगा, किडनी फेलियर के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे. नेक्स्ट है कि विच ऑर्गन ऑफ द बॉडी इज अफेक्टेड मोस्ट ऑन कीपिंग फास्ट फॉर लॉन्ग टाइम. अगर फास्ट रखते हो लॉन्ग टाइम के लिए तो विच बॉडी इफेक्ट किडनी जो है इफेक्ट करता है आपका. इन मॉडर्न डेज न्यूक्लियर मेडिसिन प्ले वाइटल रोल इन मेडिकल साइंस. दे आर एक्सैक्टली सो सी यानी दे आर द रेडियो आइसोटॉप्स. क्या होते हैं वो, रेडियो आइसोटॉप्स होते हैं. सो मॉडर्न डे जो है न्यूक्लियर मेडिसिन जो है वाइटल रोल प्ले करते हैं इन द फील्ड ऑफ मेडिकल साइंस. एंड द ब्रांच जो है इसका यूज रेडियो आइसोटॉप्स रेडिएशन टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द फंक्शन ऑफ पर्सन स्पेसिफिक ऑर्गन और ट्रीटेड डिसीज. अब जो है लिस्ट को मैच करना है, ठीक है. सो ऑप्शन सी ए का 3 हो जाएगा आपका. आर्सेनिक रेडियो से आर्सेनिक 74 जो डायग्नोस्टिक यूज है ट्यूमर का, और बी का 4 हो जाएगा यानी कोबाल्ट 60 जो है कैंसर के लिए है डायग्नोस्टिक यूज, ठीक है. अब सी का 1 आयोडीन जो है आपको पता है एक्टिविटी ऑफ थायराइड ग्लैंड, एंड सोडियम 24 जो है आपको होगा ब्लड डिसऑर्डर. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच. कौन सा इसमें करेक्टली मैच नहीं है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. गोल्डन 198 ट्रीटमेंट ऑफ द रेटिनल डिसऑर्डर. कोबाल्ट 60 आपको पता है इंटरनल नेप्रोल. आयोडीन 131 जो है ट्रीटमेंट ऑफ थायराइड नियोप्लाज्म एंड फास्फोरस ट्रीटमेंट ऑफ लुकमिया, ठीक है. सो गोल्ड 198 जो है रेडियो एक्टिव आइसोटोप है जो यूज करता है ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर. अदर पेयर आर करेक्टली मैच. तो 198 जो है गोल्ड का किस में ट्रीट करता है, कैंसर के लिए. विच ऑफ द फॉलोइंग रेडियो एलिमेंट इज यूज टू मेजर द स्प्रेड ऑफ द ब्लड फ्लो इन द ह्यूमन. तो कौन से रेडियो एलिमेंट का यूज करते हैं स्प्रेड ऑफ द ब्लड फ्लो को ह्यूमन के अंदर मेजर करने के लिए. तो डी इज द राइट आंसर, रेडियो सोडियम. नेक्स्ट आता है कि leukemia is a type of cancer in which there is a abnormal increase in the number of D white cell blood जो increase हो जाता है. So leukemia जो is a type of cancer है that is usually bigger in the blood bone marrow. कहाँ पे start होता है ये, bone marrow के अंदर, and result in high number of abnormal white blood cell. high number of white blood cell होते हैं. symptom में include bleeding होता है, bursting problem होता है, and feeling tired, fever, and the increased risk of infection. This diagnosis is typically made by blood test or bone marrow biopsy. तो ब्लड टेस्ट के द्वारा ही पता चलता है क्या बीमारी है इसके अंदर है. द रेडियो आइसोटोप यूज टू कंट्रोल ब्लड कैंसर लुकीमिया. कौन सी यूज करते हैं इसके अंदर, आपको सी ओ डी राइट आंसर देगा. फास्फोर 32 एंड कोबाल्ट 60. विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन ट्रीटमेंट ब्लड कैंसर. तो ई मोर देन अबव हो सकता है, क्योंकि देखो हमने देखा कि फास्फोरस भी दिखा रहा था, ठीक है, और कोबाल्ट भी. कोबाल्ट 60 इज जनरली यूज इन रेडिएशन ट्रीटमेंट बिकॉज इट इजेक्ट सी वाई. रेडियो आइसोटोप यूज इन डिटेक्शन ऑफ ट्यूमर इज. ट्यूमर का डिटेक्शन करने में क्या यूज करते हैं, तो यूज करते हैं आपका आर्सेनिक 74. Radioisotopes used to detect tumor in is arsenic 74. Radiation used in the treatment of muscles ache are infrared को यूज करते हैं. So infrared are used in treatment of muscles ache, and infrared light is one of the several innovative therapies that are being trialed for a management of patients with acute chronic pain. Oncogenes are associated with the cancer से related है. So oncogene is a kind of abnormal gene that
predisposed cells to develop into cancer. Which situation of the blood is known as a cancer? तो C is the right answer, यानी uncontrolled multiplications of cell by which death of sound cell finally death. सो कैंसर जो है कॉज्ड होता है बाय द अनकंट्रोल मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल्स एंड बाय एक्सेसिव कंजम्पशन ऑफ न्यूट्रिएंट फ्रॉम देम व्हाइल अदर नॉर्मल सेल्स ऑफ बॉडी डू नॉट गेट प्रॉपर न्यूट्रिशन। जो है अदर बॉडी का जो सेल्स है वो सही से प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं लेता। फाइनली क्या होता है, नॉर्मल सेल ऑफ द बॉडी एंड स्लोली एंड डेथ ऑफ द लास्ट वन। सो द metastasis is the process by which cancer cells spread through the blood and lymphatic system to other sites. Which of the following can cause cancer as well as the cure, depending upon its intensity and use? तो आयोनाइज्ड रेडिएशन जो है इसका सही आंसर होगा। सो आयोनाइड रेडिएशन जो है इज अ फैक्टर विच कैन कोज कैंसर, ये फैक्टर जो कोज करता है कैंसर को एज वेल एज द क्योर। सो डिपेंडिंग अपॉन इट्स इंटेंसिटी एंड यूज, फोटन रेडिएशन, रेडियो particle radiation are the type of ionized radiation used in cancer treatment effectively. Which of the following human organ is less susceptible to harmful radiation? C brain जो इसका right answer होगा। Which of the following human organ is the most susceptible to harmful radiation? A जो है इसका सही आंसर होगा I. Which among the following is the most recent therapy of all type of cancer? C यानी intensity modulated radiotherapy, IMRT. सो IMRT का मतलब होता है इंटेंसिटी मॉड्यूलेटेड रेडियोथेरेपी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसेंट डेवलपमेंट इन द ऑन्कोलॉजी। और ये क्या करता है, इनेबल प्रिसिशन कन्फर्मेशन ऑफ द रेडिएशन डोज टू टारगेट वॉल्यूम एंड यूज टू ट्रीट नियरली एवरी टाइप ऑफ सॉलिड ट्यूमर। इंटरफेरॉन इज यूज फॉर द कंट्रोल ऑफ कैंसर को कंट्रोल करने से होता है। सेरेब्रल प्लेजी ब्रेन डिसऑर्डर फाउंड जनरली इन स्मॉल चिल्ड्रन के अंदर पाया था ये। उसके बाद जो है विच ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी इज अफेक्टेड बाय द अल्जाइमर डिसीज? तो बी इज द राइट आंसर, द ब्रेन इज द राइट आंसर। ब्रेन जो अल्जाइमर डिसीज इफेक्ट होता है। सो अल्जाइमर डिसीज लीड टू नर्व सेल्स डेथ एंड टिश्यूज लॉस थ्रू आउट द ब्रेन। ऑल द टाइम ब्रेन क्या होता है, श्रिंक ड्रामेटिकली एंड अफेक्टिंग द नियरली ऑल इट्स फंक्शन। Recently, scientists discovered protein which is responsible for hazardous neural disease, Alzheimer. Which of the following that protein is? Option C is the right answer, amyloid precursor protein. The Nobel Prize for developing treatment of Parkinson's disorder was given to Arvind Carlson को दिया गया ये। Scratching eases itching because C यानी it stimulated certain nerves which direct brain to increase the production of antihistaminic chemicals. So ये 50 क्वेश्चन है आपके। आई होप आपको ये जरूर समझ में आएंगे। थैंक यू।